Now we will continue with the next application of chi-square test as a test of independence or association of attributes. Test of independence, attributes. Attributes क्या है? Attributes का मतलब दो कोई भी हम किसी तरह के भी attributes ले लें, जैसे education and employment, ये attributes है, ठीक है? Post graduation and marriages. So what we want to check with the help of this chi-square test, we can test whether two or more attributes are associated or independent. कि जो दो attributes लिए हैं कि education और employment आपस में associated है, मतलब जो educated है वो employed है, मतलब जो एजुकेटेड नहीं है वो अनएम्प्लॉयड है. इस तरह से जो एक एसोसिएशन है क्या उनके बीच में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती. कि जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो मैरिड ही होते हैं. Is there any association between the postgraduate students and the married one? ठीक है. So whether weight and height are associated. So these are the kinds of attributes that we want to check whether they are independent or associated. So every time we set up the null hypothesis that the given attributes are not associated. जो given attributes है वो associated नहीं है. They are independent and then we find expected frequencies under this null hypothesis. अब इसमें एक टेबल बनेगा. ये देखो टेबल आपको नजर आ रहा है. This is a kind of table. अब A हमने ले लिया employed. ठीक है. अगर मैं सबसे छोटा सा एक टेबल बना के बताऊं आपको, chi-square test as a test of independence or association of attributes. Right? So suppose करो we have that, जैसे उन्होंने कहा employment and education, दो attributes. तो हमने यहां लिख दिया employed, यहां हो गया unemployed. Right? Then we have here educated, uneducated. दो एट्रीब्यूट्स हैं. ये ए एट्रीब्यूट है और ये था बी एट्रीब्यूट. इसके आगे दो पार्ट्स कर दिए. दिस इज A1 A2 एंड दिस इज B1 एंड B2. ठीक है. यहाँ इनका टोटल आ जाएगा. सपोज करो ये ए है. ए का क्या मतलब है? हमें डाटा दिया हुआ है. ए का मतलब क्या हुआ? इस सेल में लिखने का मतलब क्या है कि जो एजुकेटेड भी हैं और एम्प्लॉयड भी हैं उनका जो नंबर है वो ए है. अब जो एजुकेटेड है लेकिन अनएम्प्लॉयड है उनका नंबर बी है. अनएजुकेटेड एम्प्लॉयड है, दे हैव द नंबर सी. एंड ये हमने एक डाटा कहीं से कलेक्ट किया. ठीक है. अब इधर इनका सम आ जाएगा. सम क्या आएगा यहाँ पे? ए प्लस बी सी प्लस डी. उसी तरह यहाँ पे भी सम आ जाएगा. Here is a sum a plus c and b plus d. Right? So null hypothesis क्या सेट करेंगे? We set up the null hypothesis H naught that the two attributes are employment and education are independent of each other. The two attributes employment and education are independent of each other. Alternative क्या आएगा? They are not independent of each other. They are not independent of each other. Right? उसके बाद अल्फा आप सेट करेंगे. अल्फा सेट किया 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. अब अगला क्वेश्चन क्या है? chi-square टेस्ट स्टेटिस्टिक्स लगाएंगे. Number 1 step, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7.
सबसे पहले एच नॉट सेट किया, द एट्रीब्यूट्स आर इन, जो भी एट्रीब्यूट्स दिए हैं, द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है जी। H1, the attributes are not independent, मतलब they are associated with each other, right? Not का मतलब क्या है? Associated. नंबर 3 अल्फा सेट किया। नंबर 4 काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इज काई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू summation OI minus EI its whole square divided by EI, summation I running from 1 to this follows chi square। अब एक टेबल बनता है, ठीक है, टेबल में नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो अगर हम m को नंबर ऑफ रोज करें और n को नंबर ऑफ कॉलम्स करें तो ये बनेगा m1 - 1 into n - 1, क्योंकि रोज और कॉलम्स की मल्टीप्लीकेशन को लेके हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बनानी, ये लिख लिया। अब अगला काम इसमें क्या है? कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड। सो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, टेबल बनाया था अभी हमने पीछे, राइट? This was A, this was B, this was A1, this one A2, this was B1, this one B2, according to that attribute. This is C, this is D, right? And this is A plus B, this is C plus D, this is A plus C, this is B plus D. What is the total? Capital N, that is A plus B plus C plus D. ठीक है जी, ये सारा जो टोटल हो जाएगा। तो अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यानी मुझे एक्सपेक्टेड ऑफ ए निकालना है, एक्सपेक्टेड ऑफ बी निकालना है, एक्सपेक्टेड ऑफ सी निकालना है, एक्सपेक्टेड ऑफ डी निकालना है, ठीक है जी। So what is the formula to calculate expected of A? सो एक्सपेक्टेड निकालने के लिए हम उस वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताऊंगी कि डायरेक्टली हमारे पास जब वैल्यू पड़ी है तो हमने टेबल में से, जब टेबल m क्रॉस n का टेबल पड़ा है तो उस टेबल में से हमें वैल्यू कैसे एक्सपेक्टेड ऑफ ए जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है, राइट? सो एक्सपेक्टेड ऑफ ए, मैंने आपको कहा अभी वैसे क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो मैं अभी फॉर्मूले पे नहीं जा रही, मैं सीधा डायरेक्टली अब आपको बता रही हूँ। ए के सामने ये कितना है, इसका टोटल कितना है? ए प्लस सी, एक रो वाइज और एक कॉलम वाइज टोटल देखेंगे। ए प्लस सी, इसके सामने क्या है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कैपिटल। बी की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या निकलेगी? इसके सामने का टोटल कितना है? ए प्लस बी रो वाइज, कॉलम वाइज कितना है? बी प्लस टी डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। एक्सपेक्टेड ऑफ सी, सी कैसे निकलेगा? इसका कॉलम वाइज कितना है या रो वाइज, पहले आप लिख लो सी प्लस टी इंटू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। उसी तरह डी का पहले रो क्या है? सी प्लस टी, कॉलम क्या है? बी प्लस टी whole divided by n. So this is the formula to calculate expected of A. Suppose करो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 है और ये टोटल बन गया 25। यहाँ है सपोज करिए अगेन आपके पास यहाँ पे 20 है तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 30, और यहाँ पे भी 15 है तो ये वैल्यू हो गई 35 और यहाँ वैल्यू आपके पास आ गई 30। तो एक्सपेक्टेड ऑफ 10 कैसे निकालेंगे? 10 का रो वाइज टोटल कितना है? 25, कॉलम वाइज कितना है? 30, और टोटल जितना भी कैपिटल एन चारों को ऐड करके बनेगा। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, राइट?
सो ये हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल ली। उसके बाद अगला स्टेप क्या है? तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद अब हमें अगला हेडिंग आएगा उसके बाद आप टेबल में फिट करेंगे। जब आप आपने कैलकुलेट की तो आप यहाँ पे वैल्यू सारी की सारी फिट कर देंगे, ठीक है। सो रिप्लेस हो जाएंगे। हियर इज एक्सपेक्टेड ऑफ ए, जो भी वैल्यू आई है आपकी, एक्सपेक्टेड ऑफ बी, एक्सपेक्टेड ऑफ सी एंड एक्सपेक्टेड ऑफ डी। हियर इज द एट्रीब्यूट पार्ट्स B1 B2 एंड A1 A2, जो भी हमने नाम रखे हुए हैं वो एज इट इज चलेंगे, ठीक है। So this is just an example to show how to do the questions according to this formula. So this is the calculation of expected frequency. अगला हेडिंग क्या देना है? कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर। अब काई स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पे जो भी आपको एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं वो सारे आप यहाँ लिखेंगे। देन उसके बाद यहाँ काई स्क्वायर की यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या थी आपके पास? A B C D। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी? एक्सपेक्टेड ऑफ ए, जो भी आपका वैल्यू आई है, ये तो सिर्फ एक नोटेशन बता रही हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद अगला काम क्या है? O माइनस ई इट्स होल स्क्वायर। अगला क्या है? O माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। और लास्ट में समेशन ऑफ OI माइनस EI डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एंड हियर इज आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं। एट्रीब्यूट्स दिस इज तो यहाँ पे कुछ ना लिखिए, ठीक है। जस्ट राइट कैलकुलेशन फॉर काई स्क्वायर। ये बन गया। अब काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेटेड हो गई। ये आपकी वैल्यू आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू। उसके बाद एक अगली वैल्यू कौन सी आएगी? अगली आएगी सिग्निफिकेंट वैल्यू। काई स्क्वायर अल्फा एट n माइनस वन m-1 इंटू n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये कौन सी वैल्यू आएगी? सिग्निफिकेंट वैल्यू। क्या करेंगे? इफ वही सेम डिसीजन, इफ काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा, जो भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आएगी, देन द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज सिग्निफिकेंट। null hypothesis is rejected. Null hypothesis rejected means there is the attributes are not independent of each other, they are associated with each other. The attributes are independent, are not independent of each other. और दूसरे में क्या आ जाएगा? The attributes are if null hypothesis is accepted, then the attributes are independent of each other, right? So let's do one example first of all. So here example number 40. To check the efficiency of a drug against typhoid, an experiment is conducted on 700 people. 700 क्या है यहाँ पे? ये capital N. This is given to be capital N. The drug was injected to 450 people and the following cases of typhoid infection were found. देखो एक ड्रग दी गई अगेंस्ट टाइफाइड। अब ड्रग कौन सी दी है? टाइफाइड के लिए, ठीक है। तो दो कॉलम्स इसमें आ गए। हमें क्या डाटा ये हमें दिया हुआ, हमने खुद से कुछ नहीं बनाया। जिनको ड्रग दी गई, जिनको नहीं दी गई, जो इन्फेक्टेड थे, जो नहीं इन्फेक्टेड थे, ये उनका सारा डाटा हमें दिया है। use chi-square test to determine the effectiveness of the drug against typhoid. मतलब is there any relation, is there any association between the effectiveness of the drug and the क्योर ऑफ द टाइफाइड? क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो हम हमेशा H0 क्या करेंगे? दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दैट इज द ड्रग इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट टाइफाइड। H1 क्या होगा? द ड्रग इज इफेक्टिव अगेंस्ट टाइफाइड। सो उसके बाद अगला स्टेप आपको क्या बताया था? अल्फा क्या लिखना है? 5%। उसके बाद काई स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है। देन यू हैव द स्टेप अंडर H0 वी विल कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब 140 की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 450 into 320 divided by 700. 310 की expected 450 into 380 divided by 700. 180 320 into 250 divided by 700. 70 की 380 into 250 divided by 700. So you will calculate the expected frequency and we will
calculate the calculation of chi-square. You know the formula. Formula is same. It comes out to be 108.22. Now the degrees of freedom. I have written m minus 1 into n minus 1. They have written r minus 1 into s minus 1. So how many rows, how many columns? 2 rows, 2 columns. So degrees of freedom कितनी हो गई? 1. So tabulated value of 5%, 1 degrees of freedom पे check करेंगे. That comes out to be 3.8. Now our value is much higher than the significant value. Therefore, the value of chi-square is significant. Hence, the hypothesis is rejected. We conclude that the drug is not effective against typhoid. This is about the chi-square test as a test of independence of attributes.